become free from aparad. तो हमारे ये पुनर्स्थापित करना भगवान के साथ, तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे बिना अपराध हम लोग ये कर सकते हैं। You're all very busy people. You came here to work, to earn actually, but to earn you have to work. So आप लोग सभी अवतारी देश में आए हैं, क्यों आए हैं? हम लोग काम करने के लिए। So lots of your time goes into that. तो बहुत सारा समय आपका जो काम काज में व्यस्त हो जाता है, आप लोग बिजी रहते हैं। And we want to work there where our time is most appreciated, where we'll get the most out of it. तो हमारे समय से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। That's why we go for a better job, right? We leave the not so good job, we go for a better job if possible. तो हम इसलिए तो पुराना जॉब छोड़ के हम लोग और अच्छा जॉब ढूंढते हैं। And it's the same everywhere. The same rule applies. तो सभी जगह ये सेम चीज, यही मापदंड लगता है सभी जगह। So if we have decided that this process is good, Harinam Sankirtan is good, then we want to maximize the output. तो अगर जब हमको पता चलता है कि हरिनाम जो संकीर्तन है वही बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। How we do that? To do quality chanting. तो हम लोग जो शुद्ध नाम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? And that is niraparad chanting. बिना अपराध के हमको जपा करना चाहिए। So if we will use our time for chanting, so let's do it without offenses. अगर हम जब समय निकाल ही रहे हैं जपा करने के लिए, तो हम क्यों न बिना अपराध के हम जपा करें? That should be our intention. तो यही हमारा इंटेंशन होना चाहिए, या हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। So, in order to do it, we have to know what are the offenses. तो ये करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि ये जो अपराध है ये क्या क्या अपराध है। So we'll go shortly through the offenses. तो हम लोग एकदम शॉर्ट में ये ऑफेंसेस के ऊपर चर्चा करेंगे। The purpose is not to know the offenses and commit them, but to know them and not commit them. तो हमारा ये जो प्रयास है कि अपराध के बारे में जान के अपराध करना नहीं है, अपराध नहीं करना है। So the first one is satam ninda. तो पहला है Satam ninda. सताम निंदा। Who is sat? Sat is sadhu. साधु, सत्य साधु। Satam ninda namna paramam aparadam itanute. It says this is the biggest offense against the sadhus. तो ये पहला जो अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है कि साधु का अपराध करना। Satam ninda namna aparadam itanute yatha kyatimyatam tatam usakate tadvigaham. This verse says, how can the holy name tolerate the offense against those who are spreading the holy names? तो हरि नाम कभी भी ये चाहेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, या वो विश्वास नहीं करेगा कि जब हम जो हरि नाम का प्रचार करते हैं तो उसका अगर हम निंदा करेंगे तो वो कभी भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको मानेगा नहीं। The holy name, Nama, and the one who possesses the name, Nami, Krishna, they're the same, they're no different. तो जो भगवान का नाम है और भगवान ये अभिन्न नहीं है, ये एक ही है। So when we say Krishna is there, it's here. तो कोई बोलेगा कृष्णा, तो कृष्णा यही है। That depends again on the quality of our chanting and the quality of our consciousness. तो ये हमारा डिपेंड करता है कि भगवान यहाँ पर है, तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है और हमारा जो जपा करने का क्वालिटी है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। So yeah, we should be respectful to sadhus. तो हमको हमेशा साधु को हम लोग उनको
उनको आदर करना चाहिए। They have given up everything else except spiritual life. They are working for Krishna. उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और भगवत मार्ग पर वो लोग चलते हैं। So now we are speaking of those who have fully given up everything else and work just for Krishna. But then there's gradations also. तो अभी हम लोग जो पहले चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने पूरे सब कुछ त्याग देके भगवत मार्ग में गए, लेकिन उसमें भी 3 श्रेणी है। There are also gradations. That means there's sadhus of different grades. So we're all sadhus here. तो अभी आप लोग भी सभी लोग साधु ही है। So we should be respectful to each other as well. तो हम लोग यहाँ पर भी जो भक्त आए हैं, तो उनको भी हमको उतना ही आदर देना चाहिए। The very easy method how to do that is to follow Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि हमको चैतन्य महाप्रभु को, हमको उसको उसके पथ पे चलना चाहिए। Trinadapi Sunichena Tadamarapi Sarishana Amanina Manadena Kirtaniya Sada Harihi. तृणादपि सुनीचेन करोड़पि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। You see, many of you have recited this verse along with me. Easy, it's very easy. ये बहुत आसान है, ये शिक्षास्त्र क्रम का जो श्लोक। What is there? Be more tolerant than a tree. तो एक गाछ, एक झाड़ से ज्यादा सहिष्णु कौन हो सकता है? More humble than a blade of grass. तो एक जो घास से नम्र कौन हो सकता है? And do not expect any what is that? No respect. Expect no respect. तो हम लोग दूसरे से ये मान का बहुत अपेक्षा करते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। And give all respect to others. और हमको एक्चुअली दूसरों को रिस्पेक्ट मान देना चाहिए। Easy, no? ये तरीका बहुत आसान है। Sometimes not so easy. कभी कभी ये बहुत कठिन भी है। Of course, we have to know there are gradations also of respect. You know, it depends on how much one is deserving, but still, everyone deserves at least a little bit of respect. इसमें भी अलग अलग श्रेणी है जो डिजर्व करता है, जिसका हमको मान देना चाहिए, लेकिन हमको हर किसी को थोड़ा से जितना भी है उतना तो हमको मान दे के रिस्पेक्ट करना चाहिए। Srila Rupa Goswami says, one who once chants the holy name, we should respect him at least in our mind. तो रूप गोस्वामी पाद ने बताया है कि जिसने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र जपा है, तो उसको हमको मन में उसका आदर करना चाहिए। And now we think how much respect goes for those who have dedicated their lives. तो आप सोचिए, जो महाभागवत है तो उसको हमको कितना आदर मान देना चाहिए। We get bhakti from bhakta. हमको भक्ति मिलता है ये भक्तों से। And sadhu sangha, even when we get prem, it's still the main anga of devotional service. We still, it's not that now we got prem, no need of sadhus. No, then even more, we want association of sadhus. तो ये साधु संग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमको प्रेम मिला तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको साधु संग नहीं करना चाहिए, हमको और ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। Then the next offense, Shivasya Shri Vishnu Raiha Guna Navali Sakalam Bhiya Bhinam Prashet Alu Hari Namajita Karaha. That's in Sanskrit. That's from Padma Puran. तो पद्म पुराण में जो दूसरा अपराध है, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। So Shivasya Shri Vishnu. There's something about Shiva and Vishnu. तो ये विष्णु और शिवा के ऊपर है। So it says that the potencies of Shiva and other demigods, they are not separate from those of Lord Vishnu. तो भगवान और जो भगवान शिव जी हैं और जो देवी देवता हैं, तो उसमें भी बहुत सारा चीज समानार्थ है।
Their qualities, good qualities, are not separate from Lord Vishnu in a sense that Vishnu is the source of those. तो इनके पीछे जो इनके गुण हैं, इसके पीछे भी जो स्तोत्र है वो भगवान विष्णु ही है। Shiv Ji Bhagwan is not independent. He is not independent. या वो स्वतंत्र नहीं है, उसके पीछे भी कोई स्तोत्र है, बट वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। Yeah, and there's another way how to understand this offense is that the Lord's name, His qualities, pastimes, His form, to think that all these categories are different is also offensive. It's all absolute. तो जैसे भगवान के गुण रूप लीला, तो ये सब भी जो है, ये जो भगवान का एक तरीके से गुण है, तो ये गुण ये अलग नहीं है, ये भगवान के गुण है सब। We already spoke the name and the one who is named, Krishna, and the person Krishna is the same. Nama and Nami एक है। तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, वो एक ही है। And then the next third offense. Actually, this is I don't know, for the initiates, have they had this Nama Parat class? जो भक्तों ने दीक्षा लिया है, उनको नाम अपराध का क्लास आप लोग ने लिया था? हरि बोल। They had. Okay. Yes. So I'm doing a repetition. तो ये जो है, इसी को हम लोग वापस से दोहराएंगे। Repetition is a mother of success. जो बार बार हम लोग सुनेंगे, तभी जाके हम लोग सफल होंगे। The third offense, Gurur Avagya. गुरु की अभिज्ञा करना। Gurur Avagya means to disrespect the orders of spiritual master. तो हमारे जो महाराज, गुरु महाराज के जो आदेश है, उसका उल्लंघन करना। So how to the Guru in connection with the holy name, he is the one who teaches us to chant the holy name. तो जो गुरु है, वो हमको हरिनाम के संग हमको सिखाता है कि हरे हरे कृष्ण महामंत्र को कैसे जपना चाहिए। This is what we get in ISKCON, right? तो यही हमको ISKCON में मिलता है। And now if we think, all right, these are Harinam Malas, but actually these other gurus, they teach Vedanta, Upanishads, this is much higher. तो कभी-कभी हमको लगता है कि हमको तो सिर्फ हरिनाम दिया है, और जो अलग-अलग जगह पर बहुत सारे वेदांतों का ज्ञान ये सब देते हैं, तो कभी लगता है कि वो ज्यादा दे रहे होते हैं। This is fine, but that is much better. हमको लगता है ये तो ठीक है, हरिनाम जो जप रहे हैं, लेकिन वो इससे बेहतर है, ऐसा हमको लगने लगता है। This is offensive. ये एक बड़ा ऑफेंस है, ये एक अपराध है। Because the holy name is the highest. तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो सबसे उत्तम है। That's connected to the next offense, Shruti Shastra Nindanam. तो चौथा जो अपराध है, प्रभु जी उसके ऊपर बताएंगे। Shastra, scripture, to offend Shastra, especially Shruti Shastra, Ved. तो जो श्रुति शास्त्र जो वेदों में है, उसका अपराध करना ये भी एक नाम अपराध है। In the highest portion of Shruti, portions are those which teaches us about the importance of the holy name of the Lord. तो जो श्रुति शास्त्र में भी जो हमको हरि नाम के बारे में जो बताता है, तो अगर हम उसका अपराध करते हैं तो वो भी सही नहीं। And again, because there are many instructions in the Vedas, and if we think that other instructions other than those to chant the holy name are more important, that is offensive. तो शास्त्रों में बहुत सारा उपदेश दिया है, लेकिन अगर जो हरिनाम के ऊपर जो उपदेश दिया है, और हमको लगता है कि हरिनाम और बाकी जो उपदेश दिया है वो हरिनाम के उपदेश से भी ऊपर है, तो ये भी एक अपराध है। Next offense, that Arthavada. तो पांचवा ऑफेंस है अर्थवाद। To think that the glories of the holy name are exaggerated. तो कभी ये भी एक अपराध है कि जो हम लोग जो हरिनाम का गुणगान गाते हैं और बताते हैं,
तो वो भी आपको लगता है कि वो भी सही नहीं है। We think, oh, they're exaggerating just to attract people तो ये to chant. But actually it's not so way. तो बहुत कोई ये सोचता होगा कि ये प्रभु जी ये क्या है, बड़ा चना की बोलता होगा कि हरि नाम का इतना हमको फायदा होता है, ये होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। Sri Chaitanya Mahaprabhu gave one living example how to deal if we meet with such people. तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक जीवंत उदाहरण दिया है कि ऐसे भक्तों के साथ कैसे हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। So we know the pastimes of Lord Chaitanya. First he was a scholar. तो आप लोगों को पता है कि चैतन्य महाप्रभु पहले एक विद्वान थे। He had a school and he was teaching his students. तो उसका एक पाठशाला था जहाँ पर वो शिक्षा देते थे। And first this was not exactly it was Vedic knowledge, but he didn't teach bhakti first. तो पहले उन्होंने जो वैदिक ज्ञान दिया था, लेकिन उसमें भक्ति के बारे में पहले नहीं बताया था। But then Lord Chaitanya, he showed the transformation. He became a devotee. तो बाद में महाप्रभु में परिवर्तन आया और वो भक्त बन गए। And then in his school he just taught bhakti. बाद में उन्होंने जो पाठशाला था उसमें सिर्फ भक्ति सिखाया। Some students were not so happy. They came there for their Vedic knowledge. तो कुछ जो आए थे जो सीखने के लिए, तो उनको ठीक नहीं लगा। तो उनको लगा कि पहले जो वैदिक ज्ञान दे रहे थे वही सही था। But Mahaprabhu taught the highest knowledge. तो महाप्रभु ने सबसे जो उत्तम ज्ञान है वो दिया। And he spoke about the utmost, the highest position of the holy name. तो महाप्रभु ने जो हरि नाम का जो उच्च ज्ञान है वो सभी को दिया। And one of the students protested. तो एक जो स्टूडेंट था तो उसने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, या उन्होंने उसको माना नहीं, उसको उत्तर मांगा। He said, "This is not the highest actually. Upanishads are much higher." तो उन्होंने बोला कि ये सर्वोच्च नहीं है हरि नाम, तो जो उपनिषद है बाकी ज्ञान है ये इसको ऊपर है। And what did Mahaprabhu do? तो ये जब तर्क दिया तो महाप्रभु ने क्या किया? He said, "Oh Vishnu, Vishnu, Vishnu! I cannot hear this." He immediately went to the Ganga and took bath to purify from hearing this offense. तो उन्होंने क्षणिक मात्र भी सुना नहीं, उन्होंने बोला विष्णु 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 कर वो कान बंद करके सीधा गंगा में जाके नहा लिया। He didn't take off the dhoti, uttariya, nothing. Went inside. सीधा कपड़े के साथ जाके गंगा में नहा लिया। No time for that. ये बिना कोई समय गवाए। He had to purify himself from this offense. तो खुद को इस अपराध से बचने के लिए उन्होंने अपना शुद्धिकरण के लिए जाके नहा लिया। Then next offense, Hari Namni Kalpanam. हरि नाम कल्पनम। So to think that the holy names, Rama, Krishna, so many, Govinda, Gopal, they're imaginary. तो ये उन्होंने सोचा ये सभी जो नाम है कृष्णा, राम, गोविंदा, ये काल्पनिक है। Something actual, the actual truth is Brahman. And the names given to Brahman, which manifests as Krishna, Rama, this is all kalpanic, just to that the people are happy. They have to identify with something, but they cannot identify with Brahman, so this is easier. But actually it's kalpanic. तो ये भी एक अपराध है। तो बहुत सारे सोचते हैं कि जो ब्राह्मण है वही सही है, और जो कृष्ण का नाम, राम का नाम, बाकी जो नाम है तो ये जो है काल्पनिक है, ये उसको उतना महत्व देने का जरूरत नहीं है। But actually the holy names are real. This is real. So therefore they have so much potency. तो ये जो हरि नाम है ये परम सत्य है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। But if you think these are imaginary names, then
It will be imaginary for us. It will be silent. For us, no result will be there. तो अगर आप ये सोचते हो कि ये काल्पनिक है तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। And then the 7, almost finished. हरि बोल। अभी हम लोग 7वां अपराध पे जा रहे हैं। Namno paranyasya hi papa buddhir na videte tasya yaner hi shuddhi. So to think that, oh, now I learned the holy names are very purifying. तो अभी हम लोग ये सीख किया कि जो शुद्ध नाम करने से हमारा शुद्धिकरण होगा। So if I perform some sin, pap, then I can manage with chanting holy name. तो हम लोग बहुत ही चतुर हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जब नाम लेने से हमारा तो शुद्धिकरण हो रहा है, तो हम क्यों ना हम पाप करें, पाप करके हम हरि नाम का नाम लेके पाप का हम शुद्धिकरण कर दे। But it says for this aparadha there is no, you cannot chant and get absolved from this offense. तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है कि आप पाप करो और आप सोचते हो कि हरिनाम कर कर आप उसका शुद्धिकरण करोगे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इसको माफी नहीं है। We cannot do some fasting or some tap or something and this will be okay. No. इसके लिए हम लोग कोई तप करके, कोई उपवास करके इसका हम लोग समाधान नहीं कर सकते हैं। How we get ये बहुत बड़ा अपराध है। how we get absolved from this is to chant pure holy name. हरि बोल। तो अगर किसी ने गलती से पाप करके सोचा कि हरि नाम से हम इसको शुद्धिकरण करेंगे, तो इसका एक ही मात्र समाधान है कि हमको सच्ची में शुद्ध नाम लेना पड़ेगा। And when we chant Shuddha Nam, then we have no taste for sin. तो जब आप जो शुद्ध नाम लोगे तो आपको हायर टेस्ट मिलेगा, तो फिर नीचे का जो पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो सब नाश हो जाएगा। Even mukti, it's not attractive to us. हमारे लिए मुक्ति भी बिल्कुल आकर्षण का पात्र नहीं है। Mukti without bhakti, just mukti, just get free from all the miseries, that is not interesting to us. We want Krishna, we want to serve devotees, we want to serve the Lord. भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, भक्त को क्या चाहिए? भक्ति, और भक्ति बढ़ेगा तो भगवान की सेवा करना है। हम लोग को जड़ जगत का दुख से हमको कोई लेना देना नहीं। That is tasty, that we want. We want to taste bhakti. तो हमको भक्ति को आस्वादन करना है, तो वो बहुत ही टेस्ट है। And we know if we like something, that's very easy to do it. और अगर हमको ये भक्ति पसंद आ जाएगा तो हमको ये करने में और आसानी है। And bhakti has such a nature, it's very tasty. तो भक्ति का जो स्वभाव है ये बहुत ही टेस्टी है, यानी हाई टेस्ट है। We know that, we chant, that's why we chant. इसीलिए हम लोग जपा करते हैं। And it's more and more and more and more. और जैसे आप ज्यादा जपा करोगे तो आपका जो रुचि है वो और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। The next one, 8th one. अभी 8वां अपराध, धर्म व्रत त्यागी कुतादि सर्व शुभ क्रिया संयम अति प्रमादः is to think this holy name, Hari Nam is fine, but it's just like some varnashram dharma, some vrata, renunciation, tyak, puta means I do some sacrifice. This is all the same. This is holy name is also fine. This is also fine. We don't understand that holy name is different, in a different category. तो ये भी एक अपराध है जब हम जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको हम लोग जो वैदिक बाकी जो रिचुअल है, जैसे कोई यज्ञ करता है या कोई वर्णाश्रम में कोई काम करता है तो कोई कुछ करता है, तो उसको आप सोचते हैं ये सब एक ही लेवल में है। तो ये एक ही लेवल में नहीं है। जो हरि नाम है
वो अलग ही है। There is a big difference. इसमें बहुत बड़ा अंतर है। What's the goal of chanting Hare Krishna? हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम कहते हैं। Yes. And you can translate that to more chanting Hare Krishna. तो ये कृष्ण प्रेम मतलब आप जब बहुत ज्यादा जपा करोगे तो कृष्ण प्रेम मिलेगा आपको। It's not that we will chant and then we will love Krishna and then what we'll do, we will be silent. No, we will glorify Krishna more with love. तो ये कैसा है, ये दोनों तरह से काम करता है। जब आप हरिनाम करते करते आपको जब रुचि आएगा और जब भगवान आपको कृष्ण प्रेम देगा तब आप शांत नहीं बैठोगे, आप और ज्यादा भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र आप जपोगे। Srila Rupa Goswami says he is lamenting, why just have one tongue only? I should have thousands of tongues I could chant Hare Krishna. तो रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि वो बहुत दुख व्यतीत करते हैं कि सिर्फ मेरा एक ही जीभ क्यों है, क्यों नहीं मेरे पास हजारों जीभ है। तो अगर हजारों जीभ होता तो हम हजारों महामंत्र एक साथ बोल सकते थे। That we should aspire for that. ये हमारा मूड होना चाहिए, ये हमारा भाव होना चाहिए, ये हमारा मन में एक एस्पिरेशन होना चाहिए। And we understand we are on the way when we stop chanting and we feel something is empty. तो अभी जब हम लोग जपा करते हैं और कभी हमने जपा करना बंद कर दिया तो हमको अंदर अंदर से लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। 9th one. अश्रद्धान विमुखे श्रूयति अष्टोपदेश शिव नाम पराधः। तो अभी 9वां अपराध के ऊपर चर्चा करेंगे प्रभु जी। So he instruct the faithless about the glories of the holy name. तो जो जिसका श्रद्धा नहीं है हरि नाम पर, उसको हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में उपदेश देना। Now, what does it mean? We should not preach. तो इसका मतलब क्या है? हम लोग प्रचार नहीं करना है। Somebody preached to us. हम भी पहले हरे कृष्ण महामंत्र का हमको तो पता नहीं था, किसी ने तो हमको प्रचार किया तभी जाके हम शुरू किए। And you always hear we should preach also, tell others. अब हम हमेशा सुनते हैं प्रीचिंग प्रचार ही सार है, तो हमको प्रीचिंग करना चाहिए, लेकिन सामने वाला अगर उसको पर अगर श्रद्धा नहीं होगा तो हम कैसे प्रचार करें? It means that we should, or when it's possible to instill faith to the persons we are preaching to, we should also give them shakti to understand that this is the actual position of the holiness I should chant. So we should try for that. तो हमको प्रयास करना चाहिए कि जो भक्त है उसमें श्रद्धा आना चाहिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए प्रचार करते समय। So in preaching, what we learned that there are some tough cases. Really, they non-believers, and okay, we'll skip those. That's what it means actually. तो हम जब प्रचार करने जाते हैं तो हमको बहुत कठिन लोग मिलते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, उनका अभी छोड़ देते हैं हम लोग बात। That is for topmost devotees. वो हम नहीं कर सकते हैं, जो शुद्ध भक्त है वो उनको डील कर सकते हैं। It's where everybody gets the mercy somehow or other by the mercy of the Lord. भाई हरे कृष्ण महामंत्र से किसी सभी को उसका लाभ मिलेगा। And the last one, the 10th one. तो 10वां जो अपराध है, श्रुतेपि न माहात्म्ये यः प्रीतिरहितो अहं ममानि परमो नाम्नि सोऽप्यपराधकृत्. So the offense is to hear about the glories of the holy name, श्रुतेपि न माहात्म्ये yah प्रीतिरहितो and do not develop attraction for chanting of the holy name. It's the first part of this offense is to hear about the glories of the holy name, Mahatmya, not Mahatmya, but still do not have attraction for chanting. अभी प्रभु जी ने इतना सारा चीज बताया और अगर इतना सारा चीज सुनने के बाद भी फिर भी अगर आप अपराध करते हो तो इसका ये भी बड़ा अपराध है।
We can be on the way. It doesn't mean 100% faith, but have some faith. I chant, and you see others, observe how it is going, and faith will increase necessarily, because that's the nature of the holy name. तो जब हम लोग को थोड़ा सा श्रद्धा होता है, तो जब हम जप करते हैं, तो हम करते 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 हमारा श्रद्धा और बढ़ता है। तो इसके लिए हमको ये निरंतर जप करते रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। We give it a try. We try. चेष्टा करें ना। हम लोग को इसको प्रयास करते रहना चाहिए, हमको इसको चेष्टा करते रहना चाहिए। And if it doesn't work, it doesn't work. What's there to lose? अगर नहीं भी अगर आपको लाभ मिला या जो हमको उससे असर नहीं मिला, फिर भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है। I was many years back when I was thinking to approach my spiritual master for Diksha or not. So I had my thinking going on in my mind. तो बहुत साल पहले जब मैं मेरे दीक्षा गुरु को मैं उनसे जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि दीक्षा लूं या नहीं लूं या क्या करूं। You have to surrender to the Guru, right? So this is not easy. तो हमको जो हमारे गुरु को शरण में हमको उनका जाना चाहिए। So I was thinking, so what I want to do in my life, I have to surrender and then give up everything else, or is there anything else I want to do in my life? What is there for me? तो प्रभु जी तभी सोच रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ के गुरु के शरण में जाऊं या कुछ और करूं। What are my plans? What are my different plans from this? तो मेरे अलग-अलग क्या प्लान हो सकते हैं, मैं सोच रहा था। Then I thought, actually, I do not know. I have no good idea what to do in my life except to surrender to Guru and accept his instruction. तो तभी मुझे लगा और कोई प्लान मेरा काम नहीं कर रहा, तो ये सही है कि मैं गुरु के शरणागति जाऊं और जो गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है, तो उनका जो आदेश है उसकी पालना करो। So this is called in English a leap of faith. See, when you are moving, so you put one foot in front of the other, and then the next one, and like this we progress. And sometimes you put your foot somewhere, you're not sure what will be. Is there some ground to hold us or not? तो कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आता है कि जैसे हम लोग एक पैर को आगे लेके जाते हैं, तो जब हम पैर को आगे लेके जाते हैं, तो हमको पता नहीं वो सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा है। तो इंग्लिश में इसको एक लीप ऑफ फेथ बोलते हैं, या जैसे एक छलांग, एक श्रद्धा का एक छलांग मारना। तो ये मालूम नहीं वो सही है क्या नहीं, लेकिन प्रभु जी ने वो छलांग मार दिया। अरे बोल, I never regretted it. और प्रभु जी ने वो जो छलांग लिया, तो आज वो दीक्षा लिया उन्होंने, और इतने साल से प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड। Yes, sir. But we cannot know everything what will happen. हमको सब कुछ क्या होगा हमको पता नहीं है। We have some knowledge. हमको पता होता है कि आगे क्या होगा, एक अंदेशा होता है। But we are experienced enough that we see that the material life doesn't offer much alternative. तो ये जो भौतिक जीवन है, ये कितना भी आप करो, इसका जो अल्टरनेट प्लान है, वो हमको पता है कि वो उससे कोई काम आने वाला नहीं है। And we may think like that, and I can always again become a materialist if I want to, because this is very easy. तो आप कभी ये भी सोच सकते हो कि ये सब भक्ति छोड़ के वापस हमारे भौतिक जीवन में चले जाओ। But we will not think like that because this is insignificant. तो हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमको ये पता है, इसलिए हम लोग इस भक्ति जीवन में आए हैं। We are clinging to spiritual life because material life is so empty. तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन को पकड़ के रखा है, क्योंकि भौतिक जीवन एक्चुअली वो उसका एक दुखालय नहीं है। Yeah, and another part, just the last part of this
offense is aham mama adi paramo namni sabya parade, that I, aham, and mama, amar, that is the highest. You just think from the perspective of me. तो अभी लास्ट पार्ट प्रभु जी बता रहे हैं, तो आई बोले हम, तो मेरे बारे में, that is the topmost. तो वो सबसे उत्तम है. But that's also offenses to the holy name, because we are not the topmost. तो ये भी एक अपराध है कि हम लोग एक्चुअली सोचते हैं हम लोग उत्तम हैं, लेकिन हम लोग उत्तम नहीं हैं. When we'll be uttam is when we will try to be good servant. जब हम एक अच्छा सेवा या दास बनेंगे भगवान के, तो तभी हम लोग उत्तम बन सकते हैं. So the path to perfection is to go beyond the offenses. तो अगर हमको जो ये परफेक्शन, इसमें अगर जाना है, शुद्ध नाम लेना है, तो इस अपराध को हमको, इस अपराध से हमको बचना पड़ेगा. And then we'll become so attached to the chanting that we will not be able to stop. तो उसके बाद हमारा हरि नाम में इतना आसक्ति होगा कि हम लोग भगवान का नाम कभी भी छोड़ेंगे नहीं. But maybe we do not feel like that right now. But with intelligence we should say, let me chant, let me chant. Let us pray to the holy name to give us the Shakti to love. तो हो सकता है कि अभी ये आपको अनुभूति नहीं होता होगा, लेकिन आपको जपा निरंतर करते रहना चाहिए. और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भगवान शक्ति दे कि हम ये अपराध और इससे हम लोग उठकर शुद्ध नाम ले सकें. If you are doing manual work, sometimes there is time you can chant along with that. That makes it so much better. तो कभी आप हरे कृष्ण महामंत्र मैनुअली चैंटिंग आप चैंटिंग करके आप उसका लाभ ले सकते हैं. Sometimes it's possible to hear. कभी कभी आप श्रवण करके उसका लाभ ले सकते हैं. This Shravan is so important. श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है. So we will not be separate from Krishna in this way, because we will be hearing or also speaking, which we can chant. If we do something manual, sometimes we can chant in this different level. We will not become so mentally tired from all the work. तो आप जब भी कोई भी आप श्रम करते होंगे, तो जब श्रम करते समय आप भगवान का नाम ले सकते हैं. तो भगवान का नाम लेते लेते आपका चित्त भी वैसे होगा और आपको थकावट भी नहीं आएगी. But when we find time, this prime time for chanting, japa, that is the best. We just have the time for the holy name, and we take the beads and chant japa. And we should really cherish those moments. Be ready. Pray to the holy name when we do that. तो जब हमको जपा का समय अगर हमको मिलता है, तो हमको बहुत ही गंभीर पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए और हमको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हम इस पे और अच्छे से जपा कर सकें. Chanting means praying. जपा का मतलब है प्रार्थना करना. And by this, prayers can do everything. जो प्रार्थना है वो बोलते हैं ना, वो सब कुछ कर सकती है. Krishna is Shaktiman. कृष्णा ही शक्ति है. कृष्णा बड़ा शक्तिमान है. So he can give us Shakti. वो हमको पूर्ण शक्ति देगा. Just we should have faith in that, and if we follow that, Shakti will come even to us, all of us, because we are dear servants of the Lord. हमको भगवान पे श्रद्धा होना चाहिए, तो भगवान हमको पूरा शक्ति देगा, क्योंकि हम लोग भगवान के सेवक हैं. We have been hearing in the morning about Lord Ram.
how he likes all the living entities. आज सवेरे हमने हॉल में भगवान श्री राम का कथा सुना था, तो कैसे भगवान राम सभी लोगों का उद्धार करते थे। Ram Bhagavan ki जय। does he likes his devotees. भगवान राम जो हैं वो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। He likes the animal वो जो पशु सभी को पसंद करते हैं, and he likes his enemies as well. वो अपने शत्रु को भी पसंद करते हैं। Whatever he does to the enemies is for their benefit. जो अपने शत्रु के लिए भी करते हैं वो उनके लिए भी लाभ ही करते हैं। So how he will not, if he loves even his enemies, how he will not love his own devotees? तो जब वो शत्रु को भी इतना प्रेम करते हैं तो अपने भक्तों को भी वो बहुत प्रेम करते हैं। That's our position. We are approaching the Lord. We are asking Him, please be merciful. He will be merciful. तो हम लोग भगवान को इसी तरह से हम लोग उसको अप्रोच करते हैं और वो हम पर कृपा करते हैं। Hare कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने प्रवचन दिया। तो सभी लोग विश्व किशोर प्रभु के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र और माता जी के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो बारंबार उत्तर प्रदेश में आए और अपना संग हमको दे, ताकि हम लोग भी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में तब तक आप लोग ड्राई फ्रूट्स अरेंज करो। तब तक किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग के पास 4 मिनट है। क्या आप